My mom, Mary Ma. My mom only had one eye. I hated her. She was such an embarrassment. My mom ran a small shop at a flea market. She collected little weeds and used to sell anything for the money we needed. She was such an embarrassment. There was this one day during elementary school. मेरी माँ की सिर्फ एक आँख थी। मैं उनसे नफरत करता था। वो बहुत शर्मनाक थी। मेरी माँ पिस्सू बाज़ार में एक छोटी सी दुकान चलाती थी। वो बेचने के लिए छोटी छोटी घास फूस और ऐसी चीज़ें इकट्ठा करती थी, हमें जो भी पैसे चाहिए थे। वे बहुत शर्मनाक थी। प्राथमिक विद्यालय के दौरान एक दिन ऐसा हुआ। I remember that it was field day and my mom came. I was so embarrassed. How could she do this to me? I threw her a hateful look and ran out. The next day at school, your mom only has one eye? And they taunted me. मुझे याद है कि उस दिन फील्ड डे था और मेरी माँ आ गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उन्हें एक घृणित नज़र से देखा और भाग गया। अगले दिन स्कूल में, तुम्हारी माँ की सिर्फ एक आँख है, और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। I wished that my mom would just disappear from this world, so I said to my mom, Mom, why don't you have the other eye? You are only going to make me a laughing stock. Why don't you just die? My mom did not respond. I guess I felt a little bad, but at the same time, it felt good to think that I had said what I had wanted to say all this time. Maybe it was because my mom had not punished me, but I didn't think that I had hurt her feelings very badly. मैं चाहता था कि मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए, और इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी दूसरी आँख क्यों नहीं है? आप सिर्फ मुझे हंसी का पात्र बनाएगी? आप मर क्यों नहीं जाती? मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही यह सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वो कह दिया जो मैं अब तक कहना चाहता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सज़ा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने उसकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई थी। That night, I woke up and went to the kitchen to get a glass of water. My mom was crying there, so quietly, as if she was afraid that she might wake me. I took a look at her and then turned away. Because of the thing I had said to her earlier, there was something pinching at me in the corner of my heart. Even so, I hated my mother who was crying out of her one eye. So I told myself that I would grow up and become successful because I hated my one-eyed mom and our disparate party. उस रात मैं उठा और एक गिलास पानी लेने के लिए रसोई में गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इतनी शांति से मानो उसे डर हो कि वह मुझे जगा ना दे। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। मैंने उससे पहले जो कुछ कहा था उसके कारण मेरे दिल के कोने में कुछ चुभ रहा था। फिर भी मुझे अपनी माँ से नफरत थी जो अपनी एक आँख से रो रही थी। इसलिए मैंने खुद से कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा और सफल बनूंगा, क्योंकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ और हमारी घोर गरीबी से नफरत थी। Then I studied really hard. I left my mother and came to Seoul and studied and got accepted in the Seoul University with all the confidence I had. Then I got married. I bought a house of my own. Then I had kids too. Now I am living happily as a successful man. I like it here because it is a place that doesn't remind me of my mom. फिर मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया और सियोल आ गया और पढ़ाई की, और पूरे आत्मविश्वास के साथ सियोल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने अपना खुद का घर खरीदा। फिर मेरे बच्चे भी हुए। अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में खुशी से रह रहा हूँ। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती।
This happiness was getting bigger and bigger when someone unexpected came to see me. What with this? It was my mother, still with her one eye. It felt as if the whole sky was falling apart on me. My little girl ran away scared of when mom died. यह खुशी और भी बड़ी होती जा रही थी। तभी कोई अप्रत्याशित व्यक्ति मुझसे मिलने आया। क्या यह कौन है? यह मेरी माँ थी। अभी भी उसकी एक आंख थी। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान मेरे ऊपर टूटकर गिर रहा हो। मेरी छोटी बच्ची मेरी माँ की आंख से डरकर भाग गई। And I asked her, "Who are you?" I don't know you, as if I tried to make that real. I screamed at her, "How dare you come to my house and scare my daughter? Get out of here now." And to this, my mother quietly answered, "Oh, I am so sorry. I may have gotten the wrong address." And she disappeared. Thank goodness she didn't recognize me. I was quite relieved. I told myself that I was not going to care or think about this for the rest of my life. और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मानो मैं उसे सच साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं उस पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरी बेटी को डराने की? यहाँ से चली जाओ। और इस पर मेरी माँ ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे बहुत खेद है। हो सकता है कि मैंने गलत पता लिख लिया हो। और वह गायब हो गई। भगवान का शुक्र है वह मुझे नहीं पहचानी। मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा था। मैंने खुद से कहा कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी में इस बारे में न तो सोचूंगा और न ही इसकी परवाह करूंगा। Then a wave of relief came upon me. One day, a letter regarding a school reunion came to my house. I lied to my wife saying that I was going on a business trip. After the reunion, I went out to the old shack that I used to call a house, just out of curiosity there. I found my mother fallen on the cold ground, but I didn't shed a single tear. She had a piece of paper in her hand. It was a letter to me. फिर मुझे राहत की लहर महसूस हुई। एक दिन स्कूल के पुनर्मिलन के बारे में एक पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यावसायिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पुनर्मिलन के बाद मैं उस पुरानी झोपड़ी में गया जिसे मैं घर कहता था। बस जिज्ञासावश वहाँ मैंने अपनी माँ को ठंडी ज़मीन पर गिरा हुआ पाया, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। यह मेरे लिए एक पत्र था। She wrote, "My son, I think my life has been long enough now, and I won't visit Seoul anymore. But would it be too much to ask if I wanted you to come visit me once in a while?" उसने लिखा, मेरा बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी लंबी हो गई है और मैं अब सियोल नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या यह पूछना ज़्यादा होगा कि मैं चाहती हूँ कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आओ? I miss you so much, and I was so glad when I heard you were coming for the reunion, but I decided not to go to the school. For you, I am sorry that I only have one eye, and I was an embarrassment for you. मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और जब मैंने सुना कि तुम पुनर्मिलन के लिए आ रहे हो तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैंने स्कूल न जाने का फैसला किया तुम्हारे लिए। मुझे खेद है कि मेरी सिर्फ एक आँख है और मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण थी। You see, when you were very little, you got into an accident and lost your eye. As a mother, I could not stand watching you having to grow up with only one eye, so I gave you mine. I was so proud of my son that was seeing a whole new world for me in my place with that eye. I was never upset at you for anything you did. देखो, जब तुम बहुत छोटे थे
तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं तुम्हें सिर्फ एक आंख के साथ बड़ा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आंख दे दी। मुझे अपने बेटे पर गर्व था जो उस आंख से मेरी जगह पर मेरे लिए एक पूरी दुनिया देख रहा था। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कभी नाराज़ नहीं हुई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए दुनिया हो। The couple times that you were angry with me, I thought to myself it's because he loves me. I miss the times when you were still young around me. I miss you so much. I love you. You mean the world to me. कुछ एक बार जब तुम मुझसे नाराज़ हुए थे, मैंने खुद से सोचा ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। मुझे वो समय याद आता है जब तुम मेरे आसपास छोटे थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। My world shattered. I hated the person who only lived for me. I cried for my mother. I didn't know of any way that will make up for my worst deeds. मेरी दुनिया बिखर गई। मुझे उस व्यक्ति से नफरत थी जो सिर्फ मेरे लिए जीती थी। मैं अपनी माँ के लिए रोया। मुझे नहीं पता कि मेरे सबसे बुरे कर्मों की भरपाई कैसे हो सकती है। Never ever hate anyone for their disabilities. Never disrespect your parents. Don't ignore and underestimate their sacrifices. They give us life. They raise us better than they had been. They give and keep trying to give better than they ever had. कभी भी किसी की अक्षमताओं के लिए उससे नफरत ना करें। कभी भी अपने माता पिता का अनादर न करें। उनके बलिदानों को नज़रअंदाज न करें और न ही उन्हें कम आंकें। वे हमें जीवन देते हैं। वे हमें पहले से बेहतर तरीके से बड़ा करते हैं और पहले से बेहतर देने की कोशिश करते रहते हैं। They never wish unwell for their kids even in their wildest dreams. They always try showing right path and being motivated. Parents give up all for kids, forgive all mistakes made by kids. There is no way to repay what they done for kids. All we can do is try giving what they need, and it is just time, love and respect. वे अपने बच्चों के लिए कभी भी अपने सबसे बुरे सपनों में भी बुरा नहीं चाहते। वे हमेशा सही रास्ता दिखाने और प्रेरक बनने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उसका बदला चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें वह देने की कोशिश करें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और वह है बस समय, प्यार और सम्मान।